Now, my dear friends, we talk about spontaneity of a reaction, or we just say spontaneous process. Now, what do you mean by this spontaneous process? The first point that you need to remember about a spontaneous process is, it is a process which can take place on its own. It can take place on its own without the use of external agency. Okay, this is what you need to keep in mind. Without the use of what? External agency. Next point is, it can be either slow or it can be fast. That means spontaneity of a process is not related to the rate of the reaction. Okay, I put a cross mark over here. So it's not related to the rate of the reaction. Okay, that is what another key point as far as the spontaneity is concerned. Next one is, it is normally unidirectional. That means it proceeds only in one direction. And therefore we say the process is going to be irreversible process. I hope you remember still the reversible and the irreversible process. Yes. Okay, the reversible means it can go forward as well as backward. So it is going to take more time. Okay, and here it is going to take less time. Okay, and that means it is going to go only in one particular direction. But please be very clear that always it's not necessary that the rate of the reaction can be considered with respect to what? Spontaneity. Many times the reactions are slow but they are spontaneous. That way also it can happen. Alright, so that's the reason I said spontaneity of the reaction is not being related to the rate of the reaction. It can be either slow or it can be fast. Alright, next thing is, the spontaneous reaction proceeds till equilibrium is achieved. Okay, you know what is equilibrium? It's a balanced state. Okay, and every system wants to remain in a balanced state. So, in other words, what we have to say is that spontaneous process tends to proceed in a direction so as to achieve equilibrium. Okay, so as to achieve what? Equilibrium. So it will go in a direction towards equilibrium. Suppose if the reaction goes towards the right and if equilibrium is achieved, that means it will prefer to go towards the right hand side. Okay, if suppose the reaction is going towards the left and the equilibrium is achieved, then the reaction will tend to go towards the left hand side. So it will proceed in that particular direction where there is going to be what? Equilibrium. The system reaches a balanced state. So these are some of the key points as far as the spontaneous process is concerned. Once again I recap. First thing is something which is naturally occurring. I mean, it is having a natural tendency for a reaction to take place. Alright. Next thing is, it takes place in only one direction. It can take place on its own. It doesn't require any external agent. The process can be either slow or fast. So it's not related to the rate of reaction at all. And the next one is, it will tend to go in a direction where the equilibrium is achieved so that the system attains a balanced state. You getting it? So this is all about spontaneous process. And then we will move around to find out which is that particular thermodynamic parameter on the basis of which the spontaneity of the process can be predicted. Alright, so before I connect the spontaneity with the thermodynamic parameter, I thought it is better that you get a clear insight about what is spontaneous process is all about, and this is what it is. Okay, I am sure you have understood this very clearly. Yes, my dear friends, I said that we need to now find out a thermodynamic parameter so as to relate it with what? Spontaneity.
So the first one is we try to relate spontaneity with respect to exothermicity, and let us just check it out whether it works out or not. So the title is exothermicity and spontaneity. Okay, what it is? Exothermicity and spontaneity. Now you must be having a question in your mind कि why exothermic reaction? आपके दिमाग में होगा ना, ऐसा चलता होगा ना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा है, व्हाई नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं कि जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं, नॉर्मली इट इज नथिंग बट रिएक्टेंट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? प्रोडक्ट्स. अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डेल्टा H इज गोइंग टू बी व्हाट? नेगेटिव. अभी डेल्टा H का आपको पता भी अच्छी तरीके से फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट इट इज Hp माइनस ऑफ HR. याद है ना आपको? यहाँ पे मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, याद रखिएगा. मैंने आपको ये बोला था कि पूरे चैप्टर में से बॉन्ड एंथैल्पी का ऐसा कंसेप्ट है जहां पर द फार्मूला इज गोइंग टू बी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट्स, अदरवाइज एवरीवेयर इट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स. तो डेल्टा H इज इक्वल टू Hp माइनस HR और वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया Hp इज लेस देन HR. बराबर है ना? लोअर माइनस हायर वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, सो Hp इज लेस देन HR. मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी इज लोअर देन द रिएक्टेंट का एनर्जी, और अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी इज मोर, and the system will always go in a direction towards greater stability, and therefore this reaction will take place. Okay, and it will go towards the right hand side, okay, where we get more stable products, and therefore we say that the process is going to be what? Spontaneous. Alright? यानी हम फिर क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में जब बात करेंगे, सो वी से इट इज रिलेटेड टू अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ठीक है, लेकिन मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपसे डिस्कस किया है. दैट वाज फर्स्ट वन वाज अबाउट NaCl solid plus aqueous gives you NaCl aqueous. Delta H value was around 4 kilojoules. याद आ रहा है ये रिएक्शन आप लोग को? Yes, and that was a plus 4 kilojoules. Enthalpy of solution. Do you remember this? Okay, enthalpy of solution is crystal lattice enthalpy minus hydration enthalpy. Okay, for this particular process, crystal lattice enthalpy was 790 and hydration enthalpy was 786 minus, तो 790 minus 786 gives you plus 4. तो ये जो NaCl का solubility है in water, okay, the energy is going to be absorbed. That means it's an endothermic process. लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, I guess everybody understands कि that so NaCl, that is नमक जो है वो पानी में आसानी से soluble होता है. That means the process is spontaneous. लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सा साइन लिखा है? प्लस, यानी वो एंडोथर्मिक है. Similarly, I can give you another example, and that is about H2O solid getting converted into H2O liquid. Delta H का value है plus 6.01 kilojoules. याद आ रहा है आपको? Yes, this was physical transformation. और उसमें सबसे पहला रिएक्शन मैंने बताया था उस कैटेगरी में, and that was enthalpy of fusion, where a solid is getting converted into liquid, ice getting converted into water. आइस को फ्रीजर में से निकालो, तुरंत ही थोड़ी देर में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. The process is spontaneous. लेकिन यहाँ पे देखो डेल्टा H का साइन क्या है? पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? Yes, it is endothermic. आई बात समझ में? यानी ये जो स्टेटमेंट है, this is what the statement which I have written, that the exothermic reactions are related to spontaneous process. अब ये दो ने इस particular statement को गलत साबित कर दिया है. These are spontaneous processes, but they are endothermic. Okay, and therefore, what I want to conclude is that exothermicity is not the only criteria for the spontaneity of the process. Okay, exothermicity is not the only criteria for spontaneity of the process. That means I cannot blindly say that yes, the reaction is exothermic, yes, it has to be spontaneous. No. Okay, there are various other criteria also which is going to govern the spontaneity of the process. Okay, यानी हम लोग ने डेल्टा H के साइन के साथ
स्पॉन्टेनिटी को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ओके हमें सफलता नहीं मिली है, बिकॉज ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उस स्टेटमेंट को कि ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस हो, कभी कभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस होते हैं. Am I clear with this? And hence, there is now a requirement to find some other thermodynamic parameter जिसके basis पे हम अनुमान लगा सकते हैं, we can predict whether the process is spontaneous or non-spontaneous. समझ में आया दोस्तों? Everybody is very clear? No doubts at all? Great. Right, so once we have found out that exothermicity cannot be always related to spontaneity, we go into the next concept, and that is called as entropy. Now, what is entropy all about? That I'll explain you, and then we'll try to connect entropy with spontaneity. पर्पस तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद यही है कि हमें उसको स्पॉन्टेनिटी के साथ जोड़ना है. क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ये तो जान ले कि एंट्रोपी होता क्या है. एक बार वो पता चला फिर हम स्पॉन्टेनिटी के साथ उसको जोड़ सकते हैं. तो सबसे पहले तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एंट्रोपी बाय मींस ऑफ अ डायग्राम, सो इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू. This is diagram A, and this is all with respect to ice. This is diagram B. I call it as water. And this is diagram C. I call it as water vapor. Okay? So now, my dear friends, the diagram says a lot. It's worth thousands of words, you know this very well. So please see the arrangement of the particles in all the three cases. When I said it is ice, so that means the arrangement is quite regular. All the particles are very close to each other. Now when we go from an ice to water, the particles will try to go away from each other. So there is some sort of a disorderness created. There is some sort of a randomness being created. When you're going to see that is in water vapor, the particles are still going far away from each other. And as I've been telling you, gaseous state is a state where the force of attraction is minimum, and therefore the particles are going to be much more in a random direction, much more in a disordered state. Alright? So this extent of disorderness, this extent of randomness, this extent of chaos, I will call it as, is nothing but what? Entropy. Okay? So what is entropy is? It is the extent of disorder or randomness or chaos which is there in the system. It means it is very clear that if the disorder is going to be more, the entropy is also going to be what? More. Now the symbol for entropy is capital S. Alright? So as a result of which, when you go from ice to water vapor, interesting my dear friends is कि ये तीनों केसेस में the chemical formula is same, that is H2O, लेकिन physical state change हो गया है. ये solid है, ये liquid है और ये gas है. तो entropy क्या होगा? इससे बढ़ता जाएगा. Alright? So because it can change, and therefore we say that entropy is a state function. वो बढ़ते जाएगा मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा. Positive हो जाएगा मतलब it will be greater than 0. So this is what it happens as we go from solid to liquid to gas. The entropy goes on increasing. Okay, मैं आपको कुछ examples देता हूँ. And that is, the example is like, suppose if I am taking gaseous iodine and I dissolve it in water, I get aqueous iodine. Okay, so gas to liquid. If you're going to consider this way, okay, gas to what? Liquid. तो क्या होगा? एंट्रोपी कम हो जाएगा. बराबर है? क्योंकि जब
सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लेकिन गैस टू लिक्विड जाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगा. सो डेल्टा एस इज गोइंग टू बी व्हाट? नेगेटिव. लेकिन अगर मैंने सॉलिड आयोडीन लिया और उसको मैंने डिसॉल्व किया इन वाटर तो वो एंट्रोपी बढ़ जाएगा. यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया आप लोग को? सॉलिड अगर मैंने लिया ओके और फिर उसको डिसॉल्व किया तो वो बढ़ेगा. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू टेक अबाउट हाइड्रोजन गैस, इट्स अ मॉलिक्यूल, I break that bond and I get two hydrogen gas atoms. तो what happens over here is physical state तो same है, लेकिन number of particles देखो, यहाँ पे तो number of particles is one because there is a bond existing. दो हाइड्रोजन जरूर है लेकिन वो एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग उसको एक कंसीडर करेंगे. लेकिन यहाँ पर ये बॉन्ड टूट चुका है, दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2, सो दैट मींस द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द एंट्रोपी विल आल्सो इंक्रीज. एक सिंपल सी बात है दोस्तों, क्लासरूम में समझो 10 बच्चे हैं और दूसरे क्लासरूम में समझो 100 बच्चे हैं, तो डिसऑर्डर रैंडमनेस कहाँ पर ज्यादा होगा? यस, आप लोग मुझे बता रहे हो कि 100 बच्चों में होगा वो, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा तो डिसऑर्डर ज्यादा, डिसऑर्डर ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा. ओके और इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स is directly proportional to entropy. If the number of particle increases, the entropy will increase. If the number of particle decreases, the entropy will decrease. यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि entropy is based on two important parameters. Okay, number one is it is based on the physical state. Okay, and if from solid to liquid to gas, the entropy increases. कभी कभी रिएक्शन में ऐसा होता है कि फिजिकल स्टेट में चेंजेस ही नहीं होता, तो व्हाट इज अनदर फैक्टर इज? यस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी. सो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस द एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया था आप लोग को, ये फिजिकल स्टेट के आधार पर वी कैन फाइंड आउट whether the entropy is increasing or decreasing. And this particular example we are going to find out on the basis of what? Number of particles, because the physical state remains the same. ओके कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, जरूर आया होगा. यस, मुझे मालूम है कि किसी ने ऐसा बोला कि सर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट भी सेम है, तो फिर क्या होगा? तो फिर सिंपल हम बोलेंगे कि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया है. ओके और अगर कोई भी चेंज नहीं आया है मतलब वो कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर देयर आर पॉसिबिलिटीज आर डेल्टा एस कैन बी ग्रेटर देन 0, delta S can be less than 0, or delta S is equal to 0. In this case, I'd say the entropy increases. In this case, I say the entropy decreases. और यहाँ पर हम बोलेंगे there is no change. That means entropy remains constant. आई बात समझ में? Are you very clear with what this entropy is all about? Yes. All right. We have understood entropy now. What exactly entropy is all about? It's the extent of disorder, and it's being symbolized as capital S. Now we go into the quantitative aspect of entropy. Okay, so the quantitative determination of entropy. Now दोस्तों, जब हम quantitative की बात करते हैं, so we are playing with numbers. Alright, we are playing with what? Numbers. And when we play with numbers, we need to have some formula also with us. And the formula is delta S is equal to Q reversible divided by T. Okay, so the amount of heat which is going to be absorbed by the system divided by the temperature in Kelvin is going to be equal to the change in entropy. Okay, so please be very clear that this is a quantitative determination of the change in entropy rather than entropy itself. Delta है, उसे ignore मत कीजिएगा. Okay, now the units of this will be joule per Kelvin. Okay, the amount of heat which is going to be absorbed is going to be in joule, and temperature, as you know, as I already told you in this particular chapter of thermodynamics, temperature is always expressed in terms of Kelvin. Alright? So now if you have a look at this particular reaction, what happens is the heat which is being supplied to the system, okay, positive है ना, तो it has to be what? Supplied to the system, it is endothermic. तो क्या होगा कि kinetic energy of the species, of the particles will increase. Okay, kinetic energy मतलब क्या होता है? Yes, energy of motion.
ओके, तो मोबिलिटी बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा. ऑलराइट, सो दैट मींस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी. Okay, so the entropy increases. So greater the amount of heat supplied, the greater is going to be the increase in entropy. और ये डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है. मैंने आपको ये एक और बात बताया था कि चेंज दो तरीके का हो सकता है. It can be a positive change or a negative change. Alright, that means there can be an increase or there can be a decrease. Now whether it's going to be an increase or decrease, it all depends upon the sign before delta. There is no sign over there, so that means it is positive. और positive है मतलब it is increasing. ओके, तो जितना ज्यादा ये Q का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा डेल्टा S का वैल्यू रहेगा. और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि therefore डेल्टा S is directly proportional to our Q. Understood this? अभी दोस्तों दूसरी बात याद रखिएगा कि the effectiveness of the addition of the heat for increasing the entropy depends on temperature. It depends on what? Temperature. Okay? देखो, हीट जब ऐड होता है सिस्टम में तो एंट्रोपी बढ़ता है. अब मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि कितना इफेक्टिव है वो हीट का एडिशन एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए. वो किसके ऊपर आधारित है? टेम्परेचर के ऊपर आधारित है. ओके, यानी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू ऐड a specific amount, say for example 40 kilojoules of heat I am applying to a system, okay, which is going to be at a higher temperature. Say the temperature is 1000 Kelvin. Then the increase in the entropy is going to be less. नहीं समझा? मैं आपको बता रहा हूं. Temperature is very high. Already system का temperature ज्यादा है, यानी already the particles का kinetic energy is going to be high. So already the particles are in motion and therefore already the disorder is high और इस वजह से एंट्रोपी ऑलरेडी हाई है. और उसमें अगर मैंने हीट सप्लाई किया तो एंट्रोपी बढ़ेगा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा एंट्रोपी कम होगा, लेकिन एंट्रोपी कितना बढ़ेगा वो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. सो द इंक्रीज इन द एंट्रोपी इज लेस एज कंपेयर्ड टू, स्टेटमेंट आता है सर. ओके, एज कंपेयर्ड टू व्हाट? अगर मैं 40 kilojoules of heat add करता हूं, same amount of heat to a system where the temperature of that particular system is 100 Kelvin. यानी the particles, यहाँ पे energy is very less, ना 100 Kelvin है, temperature is less. Okay, so the particles are almost at rest position, entropy is very less, और उसमें से मैंने energy supply किया तो sudden jump होगा. Okay, क्योंकि rest position से वो motion में आया, so the change is going to be sudden. यहां पर क्या था? ऑलरेडी द पार्टिकल्स वर इन मोशन और उसमें से मैंने हीट सप्लाई किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उनका थोड़ा स्पीड बढ़ेगा. लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है? फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मोशन पोजीशन एंड देयरफॉर दैट चेंज इज गोइंग टू बी व्हाट? वेरी हाई. सो इंक्रीज इन एंट्रोपी इज गोइंग टू बी हाई व्हेन द टेम्परेचर इज लो. यहां पे द टेम्परेचर वाज हाई, यहां पे द टेम्परेचर इज लो. आई बात समझ में? ओके दोस्तों, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि एंट्रोपी कम हो रहा है. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सर ये तो ऐसा IT है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये कैसा पॉसिबल है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ना ही चाहिए. मैं भी वही बोल रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा. दोस्तों यहां पर कम क्या हो रहा है? द इंक्रीज इन एंट्रोपी कम हो रहा है इसके मुकाबले. ओके, जब सिस्टम 100 केल्विन पे होता है तो उस दौरान जो हीट आता है सिस्टम में तो उसके वजह से जो एंट्रोपी बढ़ता है वो काफी ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर्ड टू जब सिस्टम का टेम्परेचर 1000 केल्विन होता है. ये मैं बताना चाहता हूं, दोनों केसेस में एंट्रोपी बढ़ रहा है. इसलिए तो देखो मैंने अपवर्ड एरो लिखा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी. ओके, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल भी देना चाहूंगा दोस्तों. ओके, कि क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स है, तो आप जानते हो फिर क्या होगा वहां पे, सिचुएशन क्या होगा? डिसऑर्डर विल बी वेरी हाई. ओके, रैंडमनेस इज गोइंग टू बी वेरी हाई. और उस सिचुएशन में अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने और एंट्री मारा तो कोई ज्यादा उसको नोट नहीं करेगा. ओके, क्योंकि ऑलरेडी इट इज इन द डिसऑर्डर स्टेट. उसमें से द एंट्री ऑफ अ स्टूडेंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है. ओके, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज, लेकिन द इफेक्ट है उस बच्चे का एंट्री मारने का क्लासरूम में वो उतना ज्यादा नहीं होगा.
लेकिन सपोज दूसरा केस कि when the class is going on very well, मतलब there is a teacher explaining a particular concept, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हैं वो कंसेप्ट जो एक्सप्लेन हो रहा है उसमें, और उस सिचुएशन में ओके जब सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हैं, टीचर जो एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब यू नो वेरी वेल दैट द सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर. ओके मतलब एंट्रोपी इज वेरी लो. उस सिचुएशन में अगर कोई आया, कोई स्टूडेंट आया या कोई और आया, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा. Am I clear with this part? Same thing is over here. The temperature is less, so effect of heat will be high, and the entropy will show a sudden increase. And in temperature low, the increase in entropy is high, and that's why we say delta S is inversely proportional to temperature. Okay? देखो ऐसा लिखोगे तो फिर मैं आपको वापस से वो मेरे शब्द दोहराऊंगा. अर्थ का यस अनर्थ हो जाएगा अगर आपने ऐसा लिखा तो. ये गलत है. ओके आपको लिखना है डेल्टा एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बोलो समझ में आई आप लोग को? एवरीबॉडी कंफर्म? ग्रेट. ओके अब हमें एंट्रोपी सही तरीके से पता चल गया. व्हाट इज एंट्रोपी, उसको क्वांटिटेटिवली कैसे फाइंड आउट किया जाए वो भी हम पता कर चुके हैं. तो अभी क्या करेंगे, जिस मकसद से एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस किया था, डू यू रिकलेक्ट द पर्पस फॉर व्हिच द एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड? यस, टू कनेक्ट इट विद स्पॉन्टेनिटी. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी. That is what we are going to consider. Okay, let us consider a simple part is made about ice. It melts above 0 degrees Celsius. Water vaporizes at 100 degrees Celsius. All these are spontaneous processes. Okay, ये क्या है? Spontaneous process है. और यहां पर डेल्टा एस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे आइस है, इट मेल्ट्स मतलब सॉलिड गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, एंट्रोपी बढ़ेगा. वाटर है तो लिक्विड है, वेपराइजेशन मतलब गैस लिक्विड टू गैस आएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू शो अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, it is going to give you H2O plus O2. Okay, if it is going to give you this, so this is in the gaseous state, this is liquid, this is gaseous. Delta S का value is plus 126 joules per Kelvin. Okay, अब ये spontaneous process है दोस्तों, याद रखिएगा. This is spontaneous process. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन तुरंत हो जाता है, so it is spontaneous. और साथ में आप देख सकते हो कि delta S is going to be what? Positive. Alright? समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? Very good. Now what I want you to understand is, okay, I give you a reaction with respect to water. Okay, now water का reaction में, when I write down H2 plus O2 gives you what? H2O. Delta S is equal to minus of 327 joule per Kelvin. Okay, H2 plus O2 gives you what? H2O. If you want to balance a reaction, I can balance it this way, 2H2O, and this is 2H2 plus O2, and it gives you this. The process is spontaneous. Now, how this is possible? Okay, यहाँ पे दो जगह पर हमने क्या बोला है कि एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है, स्पॉन्टेनियस. एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है, स्पॉन्टेनियस. यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है तो ये स्पॉन्टेनियस. Actually, the non-spontaneous होना चाहिए था ना. Alright? So what I want you to understand is, okay, for a spontaneous process, inverted comma, for a spontaneous process, the total entropy का मतलब होता है entropy of the system as well as the surrounding should increase.
Okay, and this is the statement of the second law of thermodynamics. मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, अगर आपको याद है. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, और इसके आधार पर व्हाट वी से इज डेल्टा एस टी is going to be greater than 0, then the process is going to be what? Spontaneous. And delta S T का मतलब यही होता है कि it is the entropy of the system plus the entropy of the surrounding. Okay, this is what it is. Okay, अब देखिए, I will explain you this particular concept, how it has come up. Okay, मैं reaction वापस से लिखता हूँ. And that is 2H2 plus O2 gives you 2H2O. इसका डेल्टा H वैल्यू है दोस्तों माइनस ऑफ 572 किलो जूल्स. ओके, याद आ रहा है? मैंने 286 बोला था आप लोगों को. अंडर व्हाट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब यहाँ पे क्यों 286 बोला था? बिकॉज इट वॉज ओनली 1 मोल ऑफ वाटर. यहाँ पे देयर आर 2 मोल्स ऑफ वाटर. सो 286 दैट मीन्स व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 572 आएगा. मैंने आपको बोला था algebraic operations are permitted on chemical reactions. Okay, so delta H का value is what? Minus of 572. Okay, kilojoules. Now this minus sign indicates what? The reaction is exothermic. इसका मतलब क्या हुआ? This is with respect to the system. तो सिस्टम के नजरिए से अगर ये प्रोसेस एक्सो है तो सराउंडिंग के नजरिए से क्या होगा? जी हाँ, एंडो होगा. क्योंकि सिस्टम एनर्जी दे रहा है. किसको दे रहा है? सराउंडिंग को दे रहा है. यानी सराउंडिंग के नजरिए से हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग हैज एब्जॉर्ब्ड हीट. और सराउंडिंग के नजरिए से फिर इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 572 किलो जूल्स. ओके, सो अकॉर्डिंगली नाउ डेल्टा एच सराउंडिंग का फॉर्मूला होगा Q डिवाइडेड बाई T. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. 572 into 10⁻³ divided by 290, that is the temperature in Kelvin. Okay, so answer मुझे मिलेगा and that is 1919 plus joule per Kelvin. दोस्तों ये 572 का जो वैल्यू था वो किलो जूल्स में था. हमें उसको जूल्स में कन्वर्ट करना था. सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल. 1000 मतलब 10⁻³ तो इसमें मैंने ये 10⁻³ यूज किया. लेट अस कंसीडर टेंपरेचर एज गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड स्टेट. याद है ना स्टैंडर्ड स्टेट? यस, 298 केल्विन. तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1919 जूल पर केल्विन. दिस इज द एंट्रोपी ऑफ व्हाट? सराउंडिंग. अब गो इनटू द टोटल एंट्रोपी. टोटल एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मैंने बताया था आप लोगों को, दैट इज माइनस ऑफ 327. दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, याद रखिएगा. सो माइनस ऑफ 327 प्लस 1919. ओके, सो इस तरीके से मुझे कितना मिलेगा? प्लस 1592 जूल पर केल्विन. अब क्योंकि ये प्लस है and therefore delta HT is greater than 0 and therefore the process is spontaneous. बोलो समझ में आया आप लोग को? ये जो डाउट था कि यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव होने के बावजूद भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसा है? You clear with this? Because please be very clear that this is with respect to the system. ओके, और ये लॉ क्या बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम के आधार पर हम नहीं तय कर सकते ओके वेदर इट इज सेल्फ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, वी हैव टू कंसीडर द टोटल एंट्रोपी. यानी टोटल एंट्रोपी कंसीडर करने के लिए वी हैव टू आल्सो कंसीडर द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग. सो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग प्लस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, देन यू चेक इट आउट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड देन यू कमेंट वेदर द पर्टिकुलर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. समझ में आया? और इस तरीके से आई कैन नाउ गिव यू अ वेरी सिंपल पार्ट. डेल्टा एस टी इज ग्रेटर देन 0 इज स्पॉन्टेनियस. तो इसका मतलब ये हो जाता है डेल्टा एस टी अगर लेस देन 0 है तो इट विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में क्या? टोटल एंट्रोपी याद रखिएगा. ये वापस से मैं बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एंट्रोपी है वो सिस्टम का एंट्रोपी है. टोटल एंट्रोपी नेगेटिव में आता है तो प्रोसेस क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस. और यदि
ऐसा भी हुआ कि टोटल एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, okay, that means it is same, it's constant, that means it is balanced, the entire universe is balanced. और balance का शब्द तो आप जानते ही हो, the technical word is equilibrium. Alright, so delta ST is equal to 0, so that means it is what? Equilibrium. So whether the process is spontaneous or non-spontaneous can be determined only and only when we know the entropy of the system as well as the entropy of the surrounding. बोलो ये बात समझ में आई आप लोग को? Has everybody been very clear how you are going to connect it? Okay, and this is also the second law of thermodynamics. Okay, याद रखिएगा ये. I'm sure everything is being clear so far. Yes? Okay, my dear friends. Now, once you have understood the second law of thermodynamics, जहां पर मैंने एंट्रोपी को स्पॉन्टेनिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सिस्टम का एंट्रोपी पता करने से हम ये इस बात पे नहीं पहुंच सकते कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर मुझे पता लगाना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मुझे ना केवल सिस्टम का एंट्रोपी जानना जरूरी है, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी पता होना जरूरी है. और जब दोनों को ऐड करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लिमिटेशन भी हो गया, क्योंकि सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में इस चैप्टर में कि इट इज समथिंग व्हिच इज वेल डिफाइंड. तो सिस्टम को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस डिफाइंड सिचुएशन को छोड़ के जो भी है वो सराउंडिंग है. तो सराउंडिंग तो काफी बड़ा है, तो उसमें जो भी टर्म्स रिलेटेड है, whatever terms, I'm not talking only about entropy, but whatever terms which are associated with the surrounding, it is very difficult to find out. तो इस तरीके से सराउंडिंग का एंट्रोपी भी पता करना मुश्किल हो जाता है. और अगर मेरे पास सराउंडिंग का एंट्रोपी का वैल्यू नहीं है, तो मैं ये नहीं पता कर सकता whether the process is spontaneous और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये एक लिमिटेशन आ गया, और इस लिमिटेशन को फिर दूर करने के लिए हमें एक और कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस करना है. और दोस्तों वो कंसेप्ट है गिब्स फ्री एनर्जी. वो कंसेप्ट कौन सा है? गिब्स फ्री एनर्जी. और आपके लिए एक अच्छी बात बता देता हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर लाइएगा दोस्तों. और वो इसलिए कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इस चैप्टर का थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट कंसेप्ट है. कम ऑन, चेहरे पे कुछ मुस्कान दिखाइए. जी हाँ, यस, इट इज द लास्ट कंसेप्ट इन द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, लेकिन थियोरी पे यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो जो जोश बनाए रखा है आप लोगों ने शुरुआत से लेकर अब तक, वो थोड़ी देर के लिए बनाए रखिए चैप्टर के अंत तक. ओके, और शुरू करते हैं अभी आखिरी कंसेप्ट, और वो है गिब्स फ्री एनर्जी. उसका जो सिंबल है दोस्तों, एंड दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल जी. व्हाट इज द सिंबल? कैपिटल जी. उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज G is equal to H minus of Ts. ओके, अभी आपको मालूम है H is nothing but enthalpy, T is temperature and S is entropy. और ये सारे के सारे दोस्तों स्टेट फंक्शन हैं, and therefore G is also a state function, and therefore the change in G at constant temperature, we assume that the temperature is constant, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? डेल्टा G is equal to डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S. हम लोग ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके, और इसलिए दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन दैट वी गेट. डेल्टा G is equal to डेल्टा H माइनस ऑफ T डेल्टा S. क्लियर हो गया? आई गिव यू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज नंबर 1. ओके, नाउ एज आई सेड, द फॉर्मूला फॉर entropy change is Q by T. Okay, delta S is what? Q by T, reversible process, amount of heat absorbed to the temperature in Kelvin. Right? That is what the formula is. Abhi, what we need to do is we need to go for the total entropy. So the total entropy delta ST is equal to delta S, alright, minus of, first of all, let me give you directly, नहीं दूंगा, आप confuse हो जाओगे. पहले तो ये फार्मूला बताता हूँ, ये सबको पता है. टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. अब देखो, ये जो फार्मूला है वो सराउंडिंग के नजरिए से फार्मूला है.
अब सराउंडिंग के नजरिए से अगर हीट एब्सॉर्ब होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सराउंडिंग के नजरिए से हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, और हीट इवॉल्व होगा तो उसका साइन क्या आएगा, माइनस। ओके, तो अगर डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो फिर डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ क्यू बाई टी। अब क्यू इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच। Okay, that is, it is the total enthalpy. Okay, so it is delta H divided by T. Okay, Q is being considered as what? Delta H, because the heat content, okay, is nothing but Q, and H is also enthalpy, which is a heat content. Only thing is enthalpy is a state function, इसलिए हम लोग ने डेल्टा साइन लिया है, और ये माइनस साइन तो आप जानते ही हो क्यों, बिकॉज सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब किया है, नहीं, क्या किया है, रिलीज किया है। ओके, तो ये फॉर्मूला भी इधर डाल दो, तो व्हाट वी गेट इज डेल्टा एस टी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई टी। मैंने सिस्टम का हटा दिया बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज सिस्टम ओनली। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस टी, तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस T delta ST is equal to minus of T delta S plus delta H। नहीं समझा ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और T और T कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, डेल्टा H। सो देयरफॉर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ T delta ST is equal to डेल्टा H माइनस T delta S, और इसको नंबर देंगे 2। अब देखो दोस्तों, ये और ये 1 and 2 कंपेयर कीजिए, the left hand side is going to be same, so left hand side is same, so right hand side will be also same, and therefore we go for an expression, and that is delta G is equal to minus of T delta ST। okay, ये मिल जाएगा हमें, delta G is equal to minus of T delta ST। अब देखिए दोस्तों, I have been telling you right in the beginning as well that whenever we talk about temperature in this particular chapter, temperature is always expressed in Kelvin। अच्छा, टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसकी खासियत ये होती है कि वो नेगेटिव नहीं होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव एट द लोएस्ट वैल्यू इज 0। यानी इसका मतलब ये हो गया, ये नेगेटिव साइन जो है वो टेम्परेचर का नहीं है, यानी अगर नेगेटिव साइन टेम्परेचर का नहीं है तो कॉमन सेंस है वो नेगेटिव साइन किसका है, डेल्टा एस टी का है, और अगर डेल्टा एस टी का साइन नेगेटिव है तो डेल्टा जी का साइन क्या हुआ, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, मतलब बोथ द साइंस आर ऑपोजिट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के द्वारा आई एम एक्सप्रेसिंग डेल्टा एस टी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, एंड दिस डेल्टा जी क्या है, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे टी मतलब टोटल था, मतलब वहां सराउंडिंग भी था, और सराउंडिंग का एंट्रोपी पता करना मुश्किल है, और इसलिए फिर अभी मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन के द्वारा इस टोटल को मैंने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, and any parameter of the system can be evaluated because it is defined। okay, मैंने एरिया डिफाइन करके रखा हुआ है सिस्टम का, ऑलराइट, इसलिए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो व्हाट वी डू नाउ इज, इसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे स्पॉन्टेनिटी के साथ, तो अभी बता देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल, कि अगर डेल्टा एस टी पॉजिटिव है तो कॉमन सेंस से डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है। ऑलराइट, और मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर आपको याद है तो टोटल एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी अगर ये कंडीशन है तो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अभी जैसे मैंने आपको बताया है केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे की जाती है, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से जोड़ो, तो अगर आप इसको ऑपोजिट कर दिया तो अभी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस टी इज लेस देन 0, डेल्टा जी विल बी ग्रेटर देन 0, तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड फाइनली अगर डेल्टा एस टी इज इक्वल टू 0, ओके, अगर ये 0 है तो टेम्परेचर का वैल्यू कोई भी होने तो डेल्टा जी ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, और जब भी दोस्तों डेल्टा का वैल्यू 0 है, कोई भी हो फिर, ओके, डेल्टा का वैल्यू जब भी 0 होता है, डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है और उसका वैल्यू 0 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा, मतलब it is constant, मतलब the values are all going to be same, and that means it is in a balanced state, and that means it is what, balance का दूसरा वर्ड क्या है, कई बार बताया हूँ, oh yes, बराबर मेरे कान के तक पहुंच गया है, and that means that it is equilibrium।
You understand this? So this is what we have done it. डेल्टा एच टी को मैंने डेल्टा जी में कन्वर्ट किया एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन टॉक अबाउट, यानी अभी मेरे पास डेल्टा एच टी का वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्टली डेल्टा जी के वैल्यू से पता करूंगा वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, डेल्टा जी क्या है? द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये मैं स्ट्रेस कर रहा हूं दोस्तों ये वर्ड पे, ऑफ द सिस्टम, एंड देयरफॉर इट कैन बी डिटरमाइंड एंड देन आई कैन फाइंड आउट वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, ये एनर्जी का मामला है दोस्तों. एंड लेस देन जीरो है. लेस देन जीरो मतलब क्या? नेगेटिव, मतलब एनर्जी कम है. और दोस्तों आप जानते हो अच्छी तरीके से, इस चैप्टर में कई बार बोल चुका हूं मैं कि अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सिस्टम हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भाग के जाता है, और भाग के जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस. ऐसा याद रखो दोस्तों, तो कोई गड़बड़ नहीं होगा. एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड देयरफॉर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. फिर उस हिसाब से घुमाओ तो आपको नॉन स्पॉन्टेनियस मिल जाएगा. आई बात समझ में? ऑलराइट, सो आई गेस दिस गिव्स फ्री एनर्जी concept is very clear to you all. Okay, and now we are very confident to say that yes, on the basis of Gibbs free energy, we can now comment about the spontaneity of the process. Alright, now once we have understood that delta G is related to the spontaneity of the process, now what we do is delta G in combination with delta H, how does spontaneity can be related? Okay, so that is what we are going to consider, and I'll give you suitable examples so that you understand this concept entirely very well. Alright, so the title that we have is delta G and delta H with respect to the spontaneity of the process. So to begin with, you already know that the mathematical expression for the change in Gibbs free energy delta G is equal to delta H minus of T delta S. Okay, this is what the mathematical expression is. Now I'll explain you this on the basis of 4 different cases. So we start with case number 1. Case number 1, we assume that both delta H and delta S are positive. Alright? Now see what happens is, if delta H is positive, delta S is positive. Now there's a negative sign, so negative into positive will give you what? Negative. So we have 2 terms now. We are playing around with delta H and we are playing around with T delta S. Delta H is positive, T delta S क्या है? Negative है. अब मुझे ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव चाहिए. अब आप पूछोगे क्यों चाहिए नेगेटिव? क्योंकि सरल बात है कि एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्पॉन्टेनियस का कंडीशन. तो अगर मुझे ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिविटी कभी मिलेगा? व्हेन द नेगेटिविटी इज ग्रेटर देन पॉजिटिविटी, तो ही तो मुझे नेगेटिव मिलेगा फाइनल आंसर. तो इस तरीके से व्हाट आई विल से इज कि द डेल्टा जी विल बी नेगेटिव व्हेन अंडर व्हिच कंडीशन? When the negative is more than positive, यानी delta H is greater than, is less than T delta H. Or in other words, T delta H is greater than delta H. Okay? तो अभी आप greater sign किधर आ रहा है? टेम्परेचर के पास आ रहा है. तो therefore अब मैं कंडीशन क्या लिखूंगा? The process is spontaneous at high temperature. समझा? ये हो गया कंडीशन बात. Am I very clear? Both of them are considered positive. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन इधर वापस नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये टोटल मैंने नेगेटिव कंसीडर किया, इंक्लूडिंग दिस साइन. ये रेड वाला दिख रहा है साइन, ये साइन को कंसीडर करके मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन आया. पहले बोल देता हूँ. इधर आप बोलोगे सर इधर पॉजिटिव लिखा है, इधर नेगेटिव क्यों लिखा है? Am I very clear? कंसेप्ट इज क्लियर हो गया? ओके. अभी मुझे ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. तो इसके लिए फिर क्या होगा कि ये वैल्यूज ज्यादा होना चाहिए इससे. सो दैट मींस द टेंपरेचर हैज टू बी हाई. यानी कॉमन सेंस है, अगर टेंपरेचर लो है तो प्रोसेस विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस. बोलो कंसेप्ट इज क्लियर? ग्रेट. अभी बाकी का बहुत इजी हो जाएगा. वी से केस नंबर 2, बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव. अगर दोनों नेगेटिव है तो अभी थोड़ा चाहिए साइन में वापस चेंजेस लेके आता हूं मैं. डेल्टा H नेगेटिव है
अब डेल्टा एच नेगेटिव, इस नेगेटिव साइन, लाल वाला जो नेगेटिव साइन है उसको भी ध्यान में लिया तो ये प्लस आएगा, बराबर है, नेगेटिव नेगेटिव इज प्लस. Once again, I want the overall delta G to be negative. So negativity should be greater than positivity. So this time, delta H should be greater than T delta S. That means the temperature has to be low. और therefore अभी क्या लिखेंगे? इसका reverse लिख देंगे ये statement का कि the process is going to be spontaneous. Why? Because delta G is negative. लेकिन what is the change? It is going to be at low temperature. Clear? Okay, we're going to the next one now. The next one is, let us assume that delta H is positive and delta S is negative. तो अभी क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डेल्टा H पॉजिटिव है तो इधर मैं पॉजिटिव कर देता हूँ. डेल्टा S इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव. तो डेल्टा H भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली डेल्टा G is going to be positive. Okay, and therefore I will say the process is spontaneous. अभी आगे मैं लिखूंगा at all temperature. समझा? ये क्या लिखा मैंने अभी? at all temperature. टेम्परेचर का वैल्यू कोई भी होने दो. ओके, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, सो डेल्टा जी इज पॉजिटिव. इवन अगर जीरो भी हो गया, जीरो केल्विन भी हो गया, तो ये पूरा निकल गया, तो डेल्टा एच क्या प्लस है, तो डेल्टा जी इज आल्सो प्लस. ओके, एंड देयरफॉर वी से पॉजिटिव है, सो द प्रोसेस इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स. सही लग रहा है? बोलो, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही लग रहा है आप लोगों को? जो ध्यान दे रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है कानों तक कि सर कुछ तो गड़बड़ है. जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आपने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे लिखा, बराबर? यस, इसी तरीके से मेंटली अटेंड कीजिए लेक्चर को, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटल अटेंडेंस आल्सो. द प्रोसेस विल बी व्हाट, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डेल्टा जी. ऑलराइट, अब चौथा केस नंबर 4. देखो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव, ये हो गया. तो अभी चौथा, आई गेस यू नो वेरी वेल, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंड डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, सी, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, लेकिन इस नेगेटिव साइन को अगर हम लोग ने नजर में रखा तो ये भी नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. आप दोस्तों याद रखिएगा, इट इज नॉट, see, please be very clear, it is like this, -2 -3. तो आंसर will be obviously -5. ये ऐसा नहीं है दोस्तों, -2 into -3, so that means it is equal to +6. ऐसा नहीं है दोस्तों, it is this way. तो अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो obviously the answer will be what? Negative only, always negative. So delta G will be negative, and therefore the process is spontaneous. यहाँ पर spontaneous आएगा दोस्तों, नेगेटिव है. और क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एट ऑल टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर कोई भी होने तो टेम्परेचर वैल्यू, दिस डेल्टा जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 केल्विन. क्या बोला मैंने, इंक्लूडिंग 0 केल्विन. तो ये डेल्टा एच बचेगा, डेल्टा एच का साइन क्या नेगेटिव है, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, एंड देयरफॉर द प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट, स्पॉन्टेनियस. बोले समझ में आई आप लोगों को? सो दीस आर द 4 केसेस. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम लोग ने क्या किया है, डेल्टा जी डेल्टा एच को स्पॉन्टेनिटी के साथ कनेक्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू और टेम्परेचर. तो एक केस में दोनों पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव, फिर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एंड अकॉर्डिंगली वी गेट द फाइनल स्टेटमेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, process spontaneous at high temperature. Next is we have the process spontaneous at low temperature. Okay, next one we have is the process is going to be non-spontaneous at all temperatures, and finally the process is going to be spontaneous at all temperature. Alright, ये हमें 4 major statement मिलता है, and I am very sure you have all understood this very well. Yes? Alright, continuing with this Gibbs free energy, we now arrive at an expression for temperature at equilibrium. Okay, so it's a very small derivation. Okay, derive the expression for temperature at equilibrium. Temperature, as you all know,
it is denoted as capital T in this particular chapter. So temperature T and the equilibrium state. So to begin with, the mathematical expression for the change in Gibbs free energy is delta G is equal to delta H minus of T delta S. Okay, I guess you know this very well. Next one is at equilibrium. What we have is delta G is equal to 0. You know this very well. Okay, less than 0, spontaneous, greater than 0, non-spontaneous, equal to 0 is equilibrium. So now if we can just substitute this into this, then we get an expression that is 0 is equal to delta H minus of T delta S. You shift this on the other side, so we get delta H is equal to positive T delta S. And therefore temperature is equal to delta H upon delta S. Okay, so this is it. It's a very short derivation, isn't it? Okay, derivation का नाम सुन के ऐसा डरने का नहीं है, alright? ऐसे छोटे-छोटे derivations हैं और समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. Okay, so temperature is equal to delta H upon delta S और फिर आपको लिखना है इसका statement और इसका statement ये हो जाएगा कि therefore the temperature at equilibrium. दोस्तों ये बात ज़रूरी है क्योंकि अगर equilibrium हम लोग ने अगर express नहीं किया होता, assumption नहीं किया होता तो हम लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं. Okay, so temperature at equilibrium is nothing but it is the ratio of the change in enthalpy to the change in entropy. Okay, because H is enthalpy and S is entropy. So this is what the statement is. The temperature at equilibrium is nothing but it is the ratio kiska of the change in enthalpy towards what? The change in entropy. Okay, this is what we get. And this is about the derivation of or expression of the temperature at equilibrium with respect to Gibbs free energy. And I am very sure ये इतना सिंपल सा और आप स्मार्ट स्टूडेंट हो समझ में आना जरूरी है. Yes, my dear friends, you can see a big smile on my face. Yes, probably you must have got the message. Okay, if you remember, we were talking about as far as this particular chapter is concerned. The last concept is Gibbs free energy. Under Gibbs free energy, we discussed many points. So now this big smile of mine suggests that we are going towards the last point of Gibbs free energy and also of this chapter as far as the theoretical part is concerned. समझा आप लोगों? तो जैसा मेरे चेहरे पे मुस्कान आया है ऐसे आपके चेहरे में भी दिखाई देता है मुझे. Yes, we come to the last point under this particular Gibbs free energy and of this chapter, and here we go, and that is we have to find out a relationship between standard Gibbs free energy change and equilibrium constant. Okay, उसके बीच का हमें relationship find out करना. So the relation between delta G naught standard Gibbs free energy change and equilibrium constant. Alright? So सबसे पहले I'll give you an expression, and that expression is, my dear friends, delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. Now delta G and delta G naught are nothing but Gibbs free energy change, but only thing is the difference in the conditions. When I consider the condition of pressure as 1 bar, temperature as 298 Kelvin, and concentration of 1 molar, I call it as delta G naught. And in any other conditions, I'll just call it as delta G. So only difference is what? Conditions. अब आगे क्या लिखा है? R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, Q क्या है? Q है रिएक्शन कोशेंट. Q क्या हो जाता है? रिएक्शन कोशेंट. अब रिएक्शन कोशेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. कंसीडर कीजिए एक रिएक्शन है A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C and D moles of D. So this Q is equal to nothing but it is a concentration of C raised to C into concentration of D raised to D upon concentration of A raised to A and B raised to B. और अगर वो ये सारा कभी केसेस आएगा जब हम कंसीडर करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू बी इन अ सॉलिड स्टेट और अ लिक्विड स्टेट. लेकिन अगर वो गैसियस स्टेट में है, if this entire reaction is in the gaseous state, then what I have is the partial pressure of C raised to C
the partial pressure of d raised to d upon the partial pressure of a raised to a and the partial pressure of b raised to b. Okay, यानी अगर वो gases के फॉर्म में है तो then it has to be expressed in terms of what? Partial pressure. अगर solids और liquids के फॉर्म में है then it is going to be expressed in terms of concentration. So this is what Q is all about. ठीक है, अभी हम कंसीडर करेंगे at equilibrium. At equilibrium क्या होगा दोस्तों? नंबर वन कंडीशन इज कि जो डेल्टा जी है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा. You know this very well. I've already explained you this before. कि जब भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है. सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. और दूसरा चेंज है कि Q becomes equal to K, where K is called as the equilibrium constant. Okay? यानी जब भी एक सिस्टम एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम उसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट Q. लेकिन जब हम बोलेंगे कि द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो फार्मूला तो सेम है, सिर्फ उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो रहा है. रिएक्शन कोएफिशिएंट की जगह पर हम अभी क्या बोलेंगे उसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Okay, so the symbol will change and the terminology will change. The formula will remain the same. Okay, तो अभी दोस्तों क्या करेंगे? ये कंडीशन को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. तो what we get is डेल्टा जी अभी जीरो हो जाएगा. So zero is equal to डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के. ये क्यू की जगह पे के हो जाएगा. सो देयरफॉर व्हाट वी हैव इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के. एल एन इज अ नेचुरल लॉग, और अगर मुझे लॉग टू द बेस 10 में क्या कन्वर्जन करना है, मैंने आपको बताया था जब मैं डिराइव कर रहा था वर्क अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस, याद आ रहा है वो बड़ा वाला एक्सप्रेशन? तो वहां पर भी नेचुरल लॉग था, उसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया. तो क्या करना पड़ेगा? यस, यू गॉट इट, मल्टीप्लाई बाय 2.303. तो हम यहाँ पर वही करेंगे. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के. दोस्तों तो ये देखिए, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट standard Gibbs free energy change and the equilibrium constant, that is K. So minus of 2.303. अब याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर RT है log to the base 10 K. ओके, क्योंकि ये ऐसा आदत रहता है NRT क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इक्वल टू NRT. तो इस तरीके से वो दिमाग में आ जाता है. तो प्लीज ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए उसको RT ही बोलते हैं. सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log to the base 10 K. और अगर यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड व्हेन यू राइट डाउन इट इज LOG, दैट मींस इट हैज टू बी टू द बेस 10. समझ में आई बात? ऑलराइट, सो यस, देख रहे हो स्माइल. सो आई गेस यू अंडरस्टूड नाउ अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ. सो विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स थियोरेटिकली. ओके, जो थियोरिटिकल कंसेप्ट्स थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के यहाँ पर खत्म होते हैं. अब इसके बाद जो क्या बचता है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के पहले ओके मैं आप लोगों को पहले सब फॉर्मूलाज दे दूंगा. ओके, और फॉर्मूलाज देने के बाद I'll be solving some numericals with you, and that will be the complete package of this chapter of chemical thermodynamics. लेकिन before I start with the numericals, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गया है. यस, आ गया ना? ओ यस.